Good afternoon. So you are only two. Only two students have joined the class. Am I audible to you or not? Yes, Harsh? ma'am. Okay. So we are discussing, and in previous class we have discussed what is water scarcity and what are the various causes of water scarcity. Is it discussed or not? डिस्कस हुआ था causes of water scarcity. Yes, Shivika, tell me. मैम हम लास्ट डे क्लास नहीं किए थे. Harsh, Yes, ma'am. causes of water scarcity is discussed or not? Yes, ma'am. Discussed ना? Okay. तो थोड़ा सा हम एक पैराग्राफ उसका और एक बार देख लेते हैं. Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? I thought that I have already discussed it once again. क्या कोई ऐसा एरिया जहां पे sufficient amount में water available है but still that area faces water scarcity? Is it possible or not? Whether I have discussed this point or not? Yes, ma'am. Yes, in the region of flood, all around water is seen all around, but that water is not usable in nature as they are polluted in nature. So water which is polluted, which get polluted due to excessive flood situation or due to untreated disposal of industrial waste and urban waste in it, that are uneconomic in nature and not usable for domestic purposes, for drinking purposes. Even fishing can also not be developed on that region, that polluted water, that is hazardous for all kind of life. उसमें पेड़ पौधे भी होंगे तो उतना फ्रेश उसका प्रोडक्ट नहीं होगा. तो on that case, despite of or in spite of presence of water in large amount, if water is polluted, if its quality is worst, then on that case it is not usable in nature. Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. A large population means more water, not only for domestic use, but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated area and dry season agriculture. मुझे लगता है कि मैंने उस दिन कुछ कॉजेस का कुछ पॉइंट्स लिखवाया था, आपको लिखवाया था, ध्यान है किसी को? वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर स्कैसिटी आप लिख लीजिए. अगर नहीं ध्यान है तो कुछ पॉइंट्स हम बता रहे हैं जिसको कि आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे. वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर स्कैसिटी में आप सबसे पहले लिखिएगा लो रेनफॉल. फर्स्ट पॉइंट इज लो रेनफॉल. लिख रहे हो तुम लोग? दो और नीचे से चले गए. लिख रहे हैं? से यस और नो भाई. लिख रहे हो या लिखवाया जा चुका है ये वेरियस कॉजेस ऑफ वाटर स्कैसिटी? मैम लिख रहे हैं. हाँ लिखिए. हाँ लिखिए. पहला कारण है वाटर स्कैसिटी, तो आप जानते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. So qualitative aspects is also one of the causes of water scarcity. ठीक है? If quality is poor, then that may create
वाटर स्कैसिटी। तो पहला लिखिए लो रेनफॉल कॉजेज में, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैसिटी में। सेकेंड पॉइंट लिखिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। लो रेनफॉल, देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। उसके बाद लिखिए excessive and over exploitation of water resource। हाँ बोलो सोनाली। excessive and over exploitation of water resource। तीसरा कारण में लिखोगे excessive utilization और over exploitation of water resources। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, लिख लिए ये तीनों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हम एग्जाम्पल देकर बताए थे कि जहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी होता है, खास करके एंशिएंट टाइम में विलेज एरिया में किसी कुछ ग्रुप 10% पॉपुलेशन के पास बहुत सारा वाटर रिसोर्स अवेलेबल है, जैसे कि 2-4 कुआं और पॉन्ड और टैंक, और जबकि 80% 90% पॉपुलेशन ऐसा है जिसका डिपेंडेंस 1 और 2 कुएं पर है और 10% का 4-5 कुएं पर। तो ये इनइक्वालिटी जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो नेक्स्ट कारण यही होगा अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। लिख लिए? नेक्स्ट अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। Rapid industrialization and urbanization that also put extra pressure over existing water resource। आप सिंपली कारण में लिखोगे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो आप लिखेंगे। और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है दैट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स। आजकल हमारा विद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वी विटनेस्ड मेनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, and with advancement in technology nowadays we are using water resource not only for drinking purposes, not only for domestic purposes, but also in industrial sector that also demand more and more water resource for satisfying different needs of industries. Besides this, we are also using water resource for satisfying our energy requirement or energy requirement of industries, as many of conventional resources are going to be depleting day by day. So we need to develop some alternate sources of energy। और यही कारण है कि 2 और 5% से आजकल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 22% तक प्रोड्यूस करते हैं और जिसका मैक्सिमम यूज हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। सो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन also put extra pressure over existing water resource, demand more and more water for satisfying industrial need as well as satisfying their energy requirement। Rapid urbanization कैसे कारण है? That provide modern lifestyle and modern housing societies of different towns and cities exert extra pressure over existing water resource। देखोगे कि towns and cities में लोग 24 hours पानी चाहिए उनको, ऐसा नहीं कि टाइमली आ जाए, और इसके लिए वो हर के घर में ट्यूबवेल्स और वेल्स वगैरह का है, मोटर लगा हुआ है, समरसेबल लगा हुआ है, and that resulted into lowering of water table। क्योंकि एक कम एरिया में बहुत ज्यादा अगर हम ये लगा देंगे समरसेबल और ट्यूबवेल्स, that may resulted into lowering of water table। तो ये भी है। फिर rising population also create more and more demand for water। Population is also increasing day by day and that also create more and more demand for water for satisfying their drinking purposes, domestic purposes and other purposes। ठीक है? So due to all these factors, water resources are depleting day by day। ठीक है? Disposal of untreated industrial and urban waste may also leads to water scarcity। Next point में लिखोगे
disposal of untreated industrial and urban waste pollute water and causes water scarcity. लिख रहे हो? वो पॉइंट तो एक्सप्लेन किए, ये नेक्स्ट कारण मैम लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट जो अभी बताए उसमें लिखो डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बन वेस्ट ऑल्सो क्रिएट वाटर स्कैसिटी. ये इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है. दैट डिप्लीट द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड मेक इट अनयूजेबल इन नेचर. जैसे डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट जो है अगर वाटर बॉडीज में होता है, दैट डिग्रेड इट्स क्वालिटी एंड दैट मेक इट अनइकोनॉमिक फॉर इट्स यूज. So in this way it create water scarcity. So these are various causes of water scarcity. Do you have any problem in water scarcity and its various causes? इतने दिन के बाद क्लास ले रहे हैं तो वही सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहे हैं हम. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग पेज नंबर 25 का सेकंड कॉलम का सेकंड पैराग्राफ से शुरू करते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क प्लीज. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. यस शिविका. नो मैम. चलो तो यहाँ से शुरू करते हैं. सो फॉर वी हैव focused on quantitative aspects. Water scarcity, quantity में कैसे depletion हो रहा है वो पढ़ लिए हम लोग. Now let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity. यहाँ पे क्वेश्चन जो है, is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? Justify the statement. इस क्वेश्चन को नोट करो. Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? Justify the statement. इस क्वेश्चन को लिख लो तो बेटा. उसी का आंसर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. Is it possible that an area or region may have ample water? Ample means sufficient water resource but is still facing water scarcity. Not of interrogation though. Now justify the statement. Have you written the questions or not? Question लिख लिया? No ma'am. हाँ तो उसको अंडरलाइन कर लो. ये क्वेश्चन है, इसी का आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं. कैसे लिखेंगे? Yes, it is true that the regions may have ample water resource but is still facing water scarcity. In this situation, water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area suffers from water scarcity, and this scarcity is due to the bad quality of water. ये scarcity क्यों होता है? Due to the bad quality of water. ठीक है ना? Sufficiently water available है, but area faces water scarcity. Yes. This statement is absolutely right because this situation may occur in the regions which have sufficient water resource, but that water resource is of bad quality, which is unusable in nature, which is uneconomic in nature. Bad quality of water को अगर हम लोग पी लेंगे, domestic purposes में use करेंगे, ठीक है ना, खाना बना लेंगे, then that may create many waterborne disease and that is unhealthy for our health and we may suffer from diarrhea and other waterborne disease. तो इस तरह का बैड क्वालिटी ऑफ वाटर को अगर हम यूज करेंगे तो कई तरह का प्रॉब्लम हो सकता है. अगर हम फिश जो है, अगर जहाँ जिस नदी में तालाब में मछलियां हैं ज्यादा, वहां पे अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया तो हो सकता है कि मछलियों का मरने का संख्या बढ़ जाए. ठीक है ना? और अगर उससे हम क्रॉप इरिगेट कर लिए तो उसका क्वालिटी भी उतना हेल्दी नहीं हो सकता है एंड दैट मे क्रिएट सेवरल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. सो in the case of ample water resource but of bad quality of water,
that area may suffer from water scarcity. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste. ये pollution, ये quality bad क्यों होता है? Due to untreated domestic waste, due to dumping of untreated industrial waste in water bodies, due to maximum use of chemical, pesticides, fertilizers in agricultural sector. और वहां से जो भी वाटर का सोर्सेज जाता है इरिगेशन के लिए, वो धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स और केमिकल मिक्स हो जाने की वजह से, फर्टिलाइजर मिक्स हो जाने, जहां जहां सॉइल में आप ये सब यूज करते हैं, वहां से जब पानी वाटर बॉडीज फ्लो करता है तो धीरे धीरे वाटर की क्वालिटी भी खराब हो जाती है. So this is due to disposal of untreated industrial and domestic waste. This is due to the maximum use of chemical, pesticides, fertilizer in agricultural sector, which make the water resource or existing water resource hazardous for human use. That may create many diseases, that may create many problems, and are unhealthy and uneconomic for human use. You may have already realized that the need of our is to conserve and manage our water resource, and to safeguard ourselves from health hazard, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities also, and also to prevent degradation of our natural resource. Conservation and management of water is necessary. Overexploitation and mismanagement of water resource will impoverish this resource and cause ecological crisis. Here the question arises, then how can we overcome from this situation? How water scarcity can be, scarcity can be managed? What steps should be taken to reduce the problem of water scarcity? Question यहाँ पे आ सकता है ना? If these are various causes of water scarcity, then how we can overcome this problem? कैसे हम water scarcity को रोकेंगे? तो water scarcity को रोकने के लिए क्या करना होगा? Conservation and management of water resource. Here one question, again one question arises. Why do we need to conserve and manage our water resource? Note it down. इसी तरह का क्वेश्चन आता है. Why do we need to? और आप समझ रहे होंगे कि क्या है. To solve the problem of water scarcity, to ensure equal distribution of water among different social groups. यही सब है ना. That's why we need to conserve water ना. ना पूछ रहे हो, ना बता रहे हो, ना हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो. क्या है भाई? ये श्रेष्ठ राज हमेशा वेटिंग. मैम क्वेश्चन क्या था? आपका आवाज ब्रेक कर रहा है. क्वेश्चन है why do we need to conserve and manage our water resource? Why do we need to conserve and manage our water resource? लिख लिए क्वेश्चन? यस मैम. क्या होगा इसका आंसर? क्या होना चाहिए? क्यों कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड? To solve water scarcity. Yes, we need to. तो फर्स्ट पॉइंट में यही लिखो. We need to conserve and manage our water resource to solve the problems of water scarcity. पहला पॉइंट यही दो. We need to conserve and manage our water resource to solve the problem of water scarcity. ये फर्स्ट पॉइंट होगा. सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? फर्स्ट पॉइंट लिख लोगे तो बोलोगे, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे. written or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Written. हाँ. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, we need water conservation for ensuring food security. इसको एक्सप्लेन करते हैं. We need water conservation for ensuring, sorry. We need water conservation for ensuring food security. आप सब जानते हैं, a large part of water is used for irrigation and agricultural purposes,
and with the help of agriculture we satisfy our basic needs. सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स ऑफ फूड को कंप्लीट करना जरूरी है, उसको पूरा करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन यहाँ भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सिर्फ फर्टाइल लैंड में ही नहीं, और भी जो एरिया हैं उसको भी, वेस्टलैंड को भी मैनेज करना है, और वहां पे भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी डेवलप करना है, जो भी खाली प्लॉट है। और वो कैसे पॉसिबल है होगा? बाय इंश्योरिंग मोर एंड मोर इरिगेशन फैसिलिटीज, जहां पे पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा। तो बिना कंजर्वेशन और बिना मैनेजमेंट का तो हो नहीं सकता है। जैसे आगे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे कि किस तरीके से मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एक स्टेप्स है टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, और कैसे एक साथ वो कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो फूड सिक्योरिटी, लोग भूखे ना मरे, सबके बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को डे बाय डे ज्यादा डेवलप कर सके, इसके लिए भी वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जरूरी है। समझ में आया बात? सेकेंड पॉइंट में लिखना है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। थर्ड में लिखोगे टू प्रिवेंट degradation of our natural ecosystem, to prevent degradation of our natural ecosystem। वाटर टेबल डिप्लीट करता जा रहा है, जिससे कि प्लांट एनिमल्स लाइफ इन डेंजर में आ सकता है, ह्यूमस कंटेंट खत्म हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो सकती है। तो वाटर टेबल का मेंटेन होना जरूरी है, और इन सब का रिजल्ट क्या होगा? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के रूप में। तो इस तरह का इकोलॉजिकल क्राइसिस को रोकने के लिए भी वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, और क्या लिखेंगे? टू रिड्यूस द लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, इसलिए भी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज। लिख लिए? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वाटर रिसोर्स का अवेलेबल भी जो है हमारे यहाँ, वो भी कुछ सोशल ग्रुप्स को ज्यादा अवेलेबल है और बाकियों के पास नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। और किस लिए जरूरी है? फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड for equitable distribution of water resource among different social groups। ऐसा नहीं हो कि सो कॉल्ड अनटचेबल्स और ये हैं तो उनका डिपेंडेंस, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका डिपेंडेंस के लिए कमी वाटर रिसोर्स उनके लिए अवेलेबल हो, और बाकी जो सो कॉल्ड अपर कास्ट और रिच पीपल हैं उनको ज्यादा एक्सेस हो। तो ये सब बंद होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इसी तरह का इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए नल जल योजना शुरू की है। नल जल योजना का नाम सुना है ना बेटा? यस मैम। आजकल पाइपलाइन भी Yes, बिछ रहा है हर जगह, और फ्री ऑफ कॉस्ट, खास करके जो गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, उनके घर में घर तक पाइपलाइन को लाया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनका भी एक्सेस हो वाटर रिसोर्स पर। ठीक है ना, उनके यहाँ भी वाटर स्कैर्सिटी ना हो। तो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जरूरी है, किस लिए? फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो कितने सारे अभी क्वेश्चन हो गए? व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी? व्हाट आर इट्स वेरियस कॉजेस? Is it possible that an area or region may have ample water resource but is still facing water scarcity? And next is, why do we need to conserve and manage our water resource? ये चारों क्वेश्चन आप कॉपी में तैयार कर लेंगे, हो जाएगा ना?
Yes, ma'am. हाँ, तो नेक्स्ट Yes, टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं, हाउ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैव डन, किस तरीके से किया जा रहा है. सो वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर अस. वाटर कंजर्वेशन has been practiced from ancient times. Since ancient times, during ancient period also, different people practicing different water conservation efforts. उस समय भी वाटर कंजर्वेशन होता था, उस समय भी वाटर मैनेजमेंट होता था. ये हमारे लिए नया नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज हो रहा है, डैम और टैंक बनाने का काम आज हो रहा है, पहले से भी होता चला आ रहा है. ठीक है ना. और उसका एग्जाम्पल हमको आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से भी पता चलता है. जो भी पुरानी डिफरेंट पीरियड्स था, मौर्य पीरियड, गुप्तास पीरियड, मुगल पीरियड, उस समय जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है वो शो करता है कि वाटर कंजर्वेशन कोई नया टर्म हमारे लिए नहीं है, ये पहले से ही होता आ रहा है, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. अब क्या है, हम मॉडर्न लाइन पर उसी एफर्ट को थोड़ा सा न्यू साइंटिफिक तरीके से डेवलप कर रहे हैं ताकि हम एक साथ बहुत ज्यादा पर्पसेस को सॉल्व कर सकें. और उसी का एक एस्पेक्ट है आपका मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. मल्टीपर्पस नाम दिया गया है बिकॉज बाय मेकिंग डैम, by developing river valley project, we can satisfy different purposes at the same time. एक ही डैम बनाएंगे और सीरीज ऑफ डैम बनाएंगे और उस डैम का वाटर का यूज हम वाटर से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साथ करेंगे, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट रखा गया है. तो बिफोर स्टडिंग मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, लेट अस डिस्कस about ancient methods of water conservation and management. पुराने समय में वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का क्या क्या एग्जाम्पल है, पहले एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ आपका बुक में दिया हुआ है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया. इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, Srirangapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of river Ganga. बता रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी BC में भी इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद जो संगम का एरिया है, गंगा, यमुना और सरस्वती तो आजकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो ये जो इस एरिया में जब बारिश का दिन आता था तो ओवर फ्लड हो जाता था, गंगा का पानी ओवर फ्लडेड होता था. उस ओवर फ्लडेड वाटर को चैनलाइज किया जाता था, यानी कि गंगा को कई पार्ट में डिवाइड करके उसका पानी को अलग अलग क्षेत्र में फ्लो कराया जाता था. तो उस तरीके से उस समय भी आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था कि कैसे ओवर फ्लडेड वाटर को हम फ्लड कंट्रोल करें और डिफरेंट एरिया में उसको डाइवर्ट करें बाय चैनलिंग गंगा रिवर इनटू डिफरेंट चैनल्स. ठीक है, उसी तरीके से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट. चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी कई सारा डैम था, लेक था, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया गया था और वो भी पीरियड काफी डेवलप रहा है अपने समय का. इसी तरीके से एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका और महाराष्ट्र. इन सभी जगह में भी, जैसे उड़ीसा के कलिंगा में, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा में, कर्नाटक का बेन्नौर में और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी कई सारा इरिगेशन सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता था, डेवलप किया गया था फॉर कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्स. 11th सेंचुरी में जो आपका भोपाल लेक था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ दैट टाइम, और वो लेक क्या था, आर्टिफिशियल लेक था, मैन मेड लेक. मैन मेड लेक अगर हम लेक बना रहे हैं तो ये क्या शो करता है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. कोई गड्ढा खोद करके वहां पे पानी को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, बड़ा सा लेक एरिया बना दिए, हाँ, तो वो लेक एरिया क्या करता है, दैट इज हेल्पफुल इन स्टोरिंग वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एक तरह का है. तो ये मैन मेड भोपाल लेक जो था उस समय का लार्जेस्ट मैन मेड लेक था, और ये भी शो करता है कि हाउ ह्यूमन बीइंग ऑफ दैट पीरियड वे आर कंजर्विंग, they were also involved in conservation of water resource, and Bhopal Lake is one of the example of
that water conservation and management of 11th century. इसी तरीके से बता रहा है कि 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया जो हौजे खास था दिल्ली का, वो भी वाटर कंजर्वेशन को शो करता है. And that shows that water conservation and management is not new for our country, but it had been practiced since ancient time. Nowadays, with rapid industrialization and urbanization, with greater demand of water resource, we are also developing many water harvesting structure. We are also conserving and managing our water resource on modern lines, on scientific way, so that water scarcity can be reduced and water can be provided to each and everyone, can be distributed among, equally distributed among different groups. How do we conserve and manage water? Archaeological and historical records shows that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structure like dam built of stone rubbles, reservoir or lakes, embankments or canal for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dam in most of our river basin. What are dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound river and rainwater. क्या है? Dam is a barrier across river, across flowing river that obstructs, directs or retards the flow, often creating a reservoir. क्या है डैम? भाई सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ एक बैरियर है नदी के ऊपर जो पानी के ओवरफ्लो को रोकता है, उसको स्टोर करता है, उस पानी को दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करके उसका यूज को इंश्योर करता है, ठीक है ना, इम्पाउंड करता है, एंड ड्यूरिंग ड्राई सीजन दैट मे बी यूज्ड. तो डैम क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग बैरियर अक्रॉस रिवर फॉर स्टोरिंग वाटर, फॉर इम्पाउंडिंग रिवर वाटर एंड रेन वाटर that could be later used to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation, but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. क्यों कहा गया इसको मल्टीपर्पज? कि एक डैम, एक बैरियर बनाने के बाद हम पानी को ना सिर्फ स्टोर करते हैं, रेन वाटर को, रिवर वाटर को, ओवर फ्लडेड वाटर को, बल्कि उस स्टोर्ड वाटर का हम यूज वेरियस पर्पसेस को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं. और उस वेरियस पर्पसेस में क्या है? सबसे पहले तो फ्लड कंट्रोल. फ्लड कंट्रोल के साथ ही जब हम पानी को डाइवर्ट करते हैं दूसरे डायरेक्शन में, रोक कर, नदी के पानी को रोक कर इम्पाउंड करते हैं और वो स्टोर्ड वाटर को डायरेक्ट करते हैं किधर? वाटरशेड एरिया में. तो इस तरीके से ड्रॉट कंट्रोल करते हैं. एग्रीकल्चरल फील्ड में इरिगेशन कैनाल डेवलप करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं. डैम के आसपास के एरिया में एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को प्रमोट करके उस एरिया को ब्यूटीफाई करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं. स्टोर्ड वाटर में हम फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं, उसको इनलैंड नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं, और डैम पे टरबाइन लगाकर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी करते हैं. और इस तरीके से मॉडर्न लाइफ स्टाइल और इसके नीड्स को सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है थ्रू मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. Hence, dams are now referred to as multi-purpose project, where the many use of impounded water are integrated with one another. For example, the Satluj Beas River Basin, the Bhakra Nangal project, water is being used both for hydel power production and irrigation. बता रहा है सतलज और ब्यास नदी पर जो डैम बनाया गया है, भाखड़ा नंगल डैम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था फ्लड कंट्रोल. और इसके अलावा तुम्हारा पूरा पंजाब हरियाणा का एरिया में जो खेती किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी उस पानी को यूज किया जाता है. उसी तरीके से हीराकुद डैम में भी, भाखड़ा नंगल डैम में आपका ये भी किया जाता है, क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी, क्योंकि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी है वो. इसी तरह से हीराकुद डैम में जो महानदी का पानी है उसका फ्लड कंट्रोल करके उसको भी हम लोग इरिगेशन के लिए यूज करते हैं और फ्लड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करते हैं.
taking the advantages of multi-purpose river valley project, Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of independent India, proudly declares and proclaimed the dam as the temples of modern India. यहाँ पे जो द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो फ्रेज यूज किया गया है डैम के लिए, ये शो करता है न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. डैम जो है ना सिर्फ फ्लड कंट्रोल और ड्रॉट कंट्रोल के लिए है, बल्कि ये हमारा अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट कर ये इंडिया को प्रोग्रेस के मार्ग पर ले जाता है. इसीलिए इसको जवाहरलाल नेहरू क्या कहे, न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाई जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड द डैम? व्हाई जवाहरलाल नेहरू? नोट इट डाउन. व्हाई जवाहरलाल नेहरू? लिख रहे हो क्वेश्चन? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. व्हाई जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड द डैम एज द, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का मतलब है न्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंस के बाद जो ये डैम बनाए गए, रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का नया ऑब्जेक्टिव था. क्यों इसको नया ऑब्जेक्टिव कहा गया, क्यों टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया? बिकॉज it would integrate the development of agriculture and village economy with rapid industrialization and development of urban economy. ये गांव में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को सेटिस्फाई करने के लिए ही नहीं डेवलप किया गया था. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सेटिस्फाई करता है, इरिगेशन सिस्टम को प्रमोट करके विलेज इकोनॉमी को तो अपलिफ्ट कर ही रहा है. साथ ही मॉडर्न टाउन्स एंड सिटीज में इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इंडस्ट्रियल नीड्स को भी पूरा कर रहा है बाय जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू इंडस्ट्रीज एंड बाय सपोर्टिंग मॉडर्न लाइफ स्टाइल इन अर्बन सेक्टर. और इस तरीके